السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسموپولیٹن۔ ناظرین، کراچی کی ہفتہ بھر کی اہم خبروں میں یوم یکجہتی کشمیر کا والہانہ انعقاد ہو یا کثیر القومی بحری مشق کا آغاز ہو، کراچی لٹریچر فیسٹیول کا شاندار آغاز ہو یا ویمن پاور رن کا انعقاد ہو، کراچی میں ڈمپر ٹرکوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہو یا تاجر مسائل کے لیے انتظامی کمیٹیوں کی تشکیل ہو، بچوں کے اغوا واقعات میں پولیس کی ناکامی ہو یا میئر کراچی کا ترقیاتی اسکیموں کی تکمیل کا دعویٰ ہو، ممتاز مصور مشکور رضا کی خبر انتقال ہو یا مرگی کا عالمی دن پر تقریب ہو۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے اور ملاحظہ کیجیے ایسی بہت سی خاص خبریں کاسموپولیٹن میں۔ ناظرین، پہلے چلتے ہیں لاہور سے اسکا احمد کی جانب۔ جی اسکا، لاہور سے اس ہفتے کی خاص خبریں کیا ہیں؟ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاسموپولیٹن لاہور کے مکمل احوال کے ساتھ اسکا احمد۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس ہفتے کی اہم کاسموپولیٹن ہیڈ لائنز کی جانب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے بعد اسٹیڈیم کا افتتاح کر دیا۔ لاہور یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب، وزیر اعلیٰ پنجاب کی آمد۔ لاہور جیلانی پارک میں ہارس اینڈ کیٹل شو کی فلوٹس گاڑیوں کا افتتاح۔ لاہور سے 3 کروڑ روپے تاوان کے لیے اغوا ہونے والا بچہ بازیاب۔ گھریلو ملازمہ کا 3 ماہ کے بچے پر بہیمانہ تشدد۔ دوہرے قتل، پولیس مقابلے اور دہشت گردی جیسے مقدمات میں ملوث ملزم گرفتار۔ سہ ملکی ٹرافی کے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو ہرا دیا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں رضیہ میں بتائیں گی اسلام آباد کی خاص خبریں۔ جی رضیہ۔ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضیہ خان اور آپ کو آگاہ کروں گی رواں ہفتے اسلام آباد میں ہونے والے اہم واقعات اور خبروں سے۔ تو آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان کو رواں مالی سال میں 22 ارب ڈالر سے زائد بیرونی قرضوں کی ادائیگی کا چیلنج۔ فچ کا پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ میں کمی کے خدشے کا اظہار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ چین۔ چین کا پاکستان کی قومی سلامتی، استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ وفاقی دارالحکومت میں اساتذہ کا احتجاج۔ ٹیچرز نے ٹیکس ریبیٹ پالیسی کے خاتمے اور ایجوکیشن الاؤنس کی منظوری کا مطالبہ کیا۔ حکومت کا اسلام آباد میں مقیم غیر قانونی افغان شہریوں کو ڈی پورٹ کرنے کا فیصلہ۔ آرمی چیف کی بنگلہ دیشی بحریہ کے سربراہ سے ملاقات۔ سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ 5 فروری کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ اسلام آباد کے علاقے اپارہ میں بینک ڈکیتی کی کوشش ناکام۔ بینک کے سیکیورٹی گارڈ امجد حسین غازی کی بہادری کی داستان بتائیں گے پروگرام میں۔ جی تو ناظرین، لاہور اسلام آباد کی خاص خبریں تو آپ نے جان لی۔ اب آپ کے پیش خدمت ہے اس ہفتے کی کراچی کی خاص خبریں، لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے پیش خدمت ہے ان خبروں کی ہیڈ لائنز۔ یوم یکجہتی کشمیر جذبہ حب الوطنی سے منایا گیا، سیمینارز اور ریلیوں کا انعقاد۔ کراچی میں نویں کثیر القومی بحری مشق امن 2025 کا کراچی میں آغاز۔ کراچی میں 3 روزہ 16ویں کراچی لٹریچر فیسٹیول کا شاندار آغاز، علم و ادب کے متلاشیوں کا جم غفیر۔ خواتین میں فٹنس کے حوالے سے شعور و آگاہی کے لیے 5ویں ویمن پاور رن کا شاندار انعقاد۔ سندھ حکومت کا غیر قانونی ڈمپر ٹرکوں کے خلاف کریک ڈاؤن، روڈ چیکنگ کمیٹی تشکیل۔ سندھ حکومت نے تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے وزراء کی سربراہی میں 8 کمیٹیاں تشکیل دے دیں۔ مرگی کے عالمی دن پر خصوصی تقریب کا انعقاد، طبی ماہرین کا مرگی کی آگاہی کے لیے اظہار خیال۔ اور ناظرین، اب وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی بقیہ خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس خبر سے کہ کراچی سمیت پاکستان بھر میں 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر بھرپور جذبہ حب الوطنی سے منایا گیا۔ اس سلسلے میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی پاکستان، عوامی تحریک، مجلس وحدت مسلمین، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان سنی تحریک سمیت مختلف سیاسی، مذہبی، سماجی تنظیموں کی جانب سے کانفرنسز، سیمینارز، ریلیاں اور مظاہرے منعقد کیے گئے۔ ان پروگراموں میں مقررین کا کہنا تھا کہ
کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ عوام پاکستان کا کشمیریوں سے نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے۔ پاکستانی عوام کشمیریوں کے ساتھ جدوجہد آزادی میں شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ عالمی برادری مظلوم کشمیریوں کو آزادانہ فیصلے کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا، پاکستان کی آزادی مکمل نہیں ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے سفارت خانوں، قونصل خانوں کی ذمہ داری ہے کہ کشمیر کے موقف کو عالمی دنیا میں دلیل کے ساتھ پیش کریں۔ نویں کثیر القومی بحری مشق امن 2025 کا باضابطہ آغاز پاکستان نیوی ڈاک یارڈ کراچی میں منعقد ایک متاثر کن اور رنگا رنگ پرچم کشائی کی تقریب سے کیا گیا۔ مشق امن 2025 کا آغاز شریک ممالک کے جھنڈے بیک وقت لہرا کر کیا گیا۔ تقریب میں شریک ممالک کی اعلیٰ عسکری قیادت، مبصرین، سفارتکاروں اور پاکستان کی مسلح افواج کے حکام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دوران تقریب چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے اپنے پیغام میں مشق امن 2025 کے شرکاء کا پرتپاک استقبال کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ امن مشق ایک باقاعدہ سرگرمی ہے جس میں علاقائی اور عالمی بحری افواج شرکت کرتی ہیں۔ نیول چیف نے مزید زور دیا کہ پاک بحریہ نے بحیرہ عرب میں کلیدی اسٹیک ہولڈر ہونے کے ناطے علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرولز پاک بحریہ کا ایسا ہی ایک اقدام ہے۔ کراچی کے معروف نجی ہوٹل میں 16ویں کراچی لٹریچر فیسٹیول کا آغاز 7 فروری سے ہو گیا، جو کہ 9 فروری تک جاری رہے گا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کے زیر اہتمام کراچی لٹریچر فیسٹیول 2025 کی نیریٹیوز آف سوئل تھیم ہے، جس کا افتتاحی تقریب کا آغاز ادبی، فکری مباحثوں اور ثقافتی سرگرمیوں سے ہوا۔ افتتاحی تقریب میں وزیر بلدیات سعید غنی، مینیجنگ ڈائریکٹر ارشد سعید حسین، ایف ایس اعزاز الدین اور اصغر ندیم سید، چیف مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشن آفیسر علی حبیب، آرٹ مورخ اور مصنف ایف ایس اعجاز الدین اور مختلف ممالک کے سفیر شامل تھے۔ لٹریچر فیسٹیول کے تینوں دن علم و ادب کے تخلیقی سرگرمیوں سے ترتیب دی گئی، جن میں معروف علمی شخصیات، نامور ادیبوں، اسکالرز خصوصی شرکت اور اظہار خیال کریں گے۔ لٹریچر فیسٹیول میں کراچی سمیت سندھ بھر میں طلباء، اساتذہ اور علم و ادب کے متلاشیوں کا جمع غفیر شرکت کرتا ہے۔ کتب شائقین کے لیے پبلشرز کے اسٹال لگائے گئے ہیں۔ شہر قائد میں 5ویں ویمن پاور رن کا شاندار انعقاد 2 دریا سی ویو سے شروع ہو کر اسی مقام پر اختتام پذیر ہوا۔ چیئرپرسن اسپیشل اولمپکس پاکستان کی رونق لاکھانی سے فیتہ کاٹ کر ایونٹ کا افتتاح کیا۔ ایونٹ کا مقصد خواتین میں فٹنس کے حوالے سے آگاہی اور شعور بیدار کرنا تھا۔ پاور رن میں پہلی تینوں پوزیشنز چترال اور گلگت کی ایتھلیٹس نتاشا ممتاز نعمت اور قندیل سلطان نے حاصل کی۔ سرد موسم میں ہونے والی دوڑ سے پہلے منتظمین کی جانب سے شرکاء کے لیے مختلف جسمانی ورزشوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر رونق لاکھانی کا کہنا تھا کہ ویمن پاور رن جیسے ایونٹ سے خواتین کو بااختیار بنانے میں مدد ملتی ہے اور ان سے دنیا میں پاکستان کا مثبت چہرہ اجاگر ہوتا ہے۔ پاور رن میں 500 کے لگ بھگ خواتین شریک ہوئیں، جن میں ایتھلیٹ سمیت ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی خواتین اور لڑکیاں شامل تھیں۔ پاکستان کا 90% ریونیو دینے والا شہر کراچی کا ٹریفک نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز کورنگی کراسنگ سے جاتے ہوئے تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل کو کچلا، جس کے نتیجے میں 3 نوجوان جاں بحق ہو گئے، جبکہ چند روز قبل ایسا ہی خوفناک سانحہ گلستان جوہر ملینیم مال کے قریب بھی پیش آیا، جہاں ایک ڈمپر نے موٹر سائیکل پر سوار ایک ہی فیملی کے 3 افراد کو کچل دیا تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق صرف ماہ جنوری میں 89 شہری ٹریفک حادثات میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ ٹریفک پولیس ٹریفک نظام کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے، جو مبینہ رشوت لے کر دن کے اوقات میں ٹینکرز اور ٹرالرز کو آزادانہ موت بانٹنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ حالیہ حادثات ہلاکتوں میں رد عمل دیتے ہوئے گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ اگر کراچی میں ڈمپر ٹرکوں پر قابو نہ پایا گیا تو سخت اقدامات کرنے پر مجبور ہوں گے۔
सुप्रीम काउंसिल ऑफ ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स के वफ्द से मुलाकात में वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना था कि कराची में बढ़ते ट्रैफिक जैम और हादसात के पेश नज़र सिंध हुकूमत के लिए सख्त इक़दामात लेना नागुज़ीर हो गया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस भारी गाड़ियों को रेगुलेट करने की ज़िम्मेदार है, फैसला कुन कार्रवाई करे। हुकूमत सिंध ने सेक्रेटरी सूबाई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की ज़ेर सदारत सूबे भर में सड़कों की हिफाजत के कवानीन पर अमल दरामद के लिए रोड चेकिंग कमेटी तश्कील दे दी है, जो तिजारती गाड़ियों, डंपर्स और वाटर टैंकरों की निगरानी करेगी। कमेटी की जिम्मेदारियों में तिजारती गाड़ियों की ज़रूरी दस्तावेज़ात जैसे रजिस्ट्रेशन बुक, रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंसेस की जांच पड़ताल करना शामिल है। ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग और दीगर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की रोकथाम के लिए कमेटी मखसूस सड़कों पर चेकिंग भी करेगी। सिंध हुकूमत ने ताजरों के मसाइल हल करने के लिए सूबाई वज़रा की सरबराही में 8 कमेटियां और कमिश्नर ऑफिस में खुसूसी डेस्क तश्कील दे दिया, जिसमें पानी की फराहमी, निकासी आब और तजावुज़ात से मुतालिक मसाइल के हल के लिए कमिश्नर ऑफिस डेस्क, मकामी महसूलात में कमी के मसले के लिए खुसूसी कमेटी, सरमायाकारी के फ़रोग़ और सहूलत फराहम करने के लिए सनती पॉलिसी कमेटी, तवानाई के मसाइल हल करने के लिए तवानाई कमेटी, सिक्योरिटी के मसाइल को हल करने के लिए सिक्योरिटी कमेटी, सनती इलाकों में बुनियादी ढांचे की बेहतरी के इक़दामात के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी, ट्रैफिक जैम और ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करने के लिए ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक कमेटी, सेहत और तालीम के शोबों में अवामी निजी शराकत दारी के लिए पीपी मूड प्रोजेक्ट्स कमेटी, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स यानी आबाद और उसके अरकान के मसाइल के हल के लिए हाउसिंग कमेटी, कराची की शोहरत को बेहतर बनाना और ज़्यादा सरमायाकारी को मुतवज्जे करने के लिए मीडिया कमेटियाँ शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध ने इन कमेटियों को सूबाई वज़ीरों की ज़ेर निगरानी तश्कील दिया ताकि महकमों की सतह पर मसाइल का हल निकाला जा सके, जबकि वो खुद पेचीदा और अहम मामलात को देखेंगे। इसके अलावा सिंध इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट कारोबारी अमल को आसान बनाने और सरमायाकारी को मुतवज्जे करने के लिए एक वन विंडो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सिस्टम कायम करने पर काम कर रहा है। मिर्गी के आलमी दिन के हवाले से मुनक्किदा तकरीब में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि मारूफ अदाकारा नादिया जमील और मिर्गी की बीमारी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली शख्सियात ने बतौर एजाज़े मेहमान शिरकत की। इस मौके पर एपिलेप्सी की तंजीमों के सीनियर ओहदेदारान डॉक्टर ज़रीन मोगल ने 28 फरवरी को नेशनल एपिलेप्सी डे के तौर पर मनाने की मुनासबत और अहमियत पर रोशनी डाली। मिर्गी एक सदियों पुरानी बीमारी है जो वजूद इंसानियत के आगाज़ से ही मौजूद रही है। ये एक आम न्यूरोलॉजिकल यानी कि दिमागी बीमारी है जो हर उम्र के अफराद को मुतासर करती है, ख़ास तौर पर बच्चों को और नौजवानों को। ये मर्द और ख़वातीन दोनों को यकसा मुतासर करती है, चाहे वो किसी भी माशी तबके से ताल्लुक़ रखते हों। पाकिस्तान की तकरीबन 1% आबादी यानी 22 से 24 लाख अफराद मिर्गी का शिकार हैं। तिबी माहिरीन का कहना था कि मिर्गी के मरीज बर वक्त इलाज से नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। माहिरीन का कहना था कि मिर्गी मौरूसी नहीं बल्कि एक काबिल इलाज है। लोगों में इस हवाले से आगाही देने की ज़रूरत है। जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें। अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद अस्का आपको बताएंगी लाहौर की ख़ास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नो तामीर शुदा कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में वजीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, कौमी टीम के खिलाड़ी और आला शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में खिताब करते हुए वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी टीम से कहा, हम उस वक्त का इंतजार करेंगे जब आप इंडिया को शिकस्त देंगे। अल्लाह ताला ट्रॉफी पाकिस्तान की झोली में डालेगा। देखिए ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कदाफी स्टेडियम का तज़य्युन व आराइश के बाद इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खूब तारीफ की और एक मशवरा भी दिया। आपने 117 दिनों में जो ये काम किया है तो शहबाज स्पीड तो अब माजी की बात है, मैं उस हवाले से मोहसिन स्पीड की बात करता हूँ और ये एक टीम वर्क है।
शहबाज शरीफ ने कौमी टीम को भारत को चैंपियंस ट्रॉफी में हराने का टास्क भी सौंप दिया। जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ अवाम के दिल जीतेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पंजाब हुकूमत की तारीफ की। पंजाब गवर्नमेंट की अगर हेल्प ना होती, असिस्टेंस ना होती, तो आपको ये सारा का सारा लेफ़्ट राइट खंडर नज़र आता। नाजरीन, पूरे मुल्क की तरह लाहौर में भी 5 फरवरी को योम यकजहती कश्मीर मनाया गया। इस हवाले से लिबर्टी चौक में तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शमाए आज़ादी रोशन की और शहदाए कश्मीर की यादगार पर फूल रखकर खराजे तहसीन पेश किया। मजीद बता रहे हैं नदीम चौधरी इस रिपोर्ट में। कश्मीर हमारा है के हवाले से यौम यकजहती कश्मीर की तकरीब, वज़ीर आला पंजाब के लिबर्टी चौक में तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज ने शमाए आज़ादी रोशन की, शहदाए कश्मीर की यादगार पर फूल रखकर खिराज अकीदत पेश किया। तकरीब में अलामती खामोशी भी इख्तियार की गई। शहदाए कश्मीर के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा, मेरी रगों में कश्मीरी खून दौड़ता है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा अल्लाह ताला एक दिन सच करके दिखाएगा। हुकूमत पंजाब ने यौम यकजहती कश्मीर पर खुसूसी मिली नगमा हमको कश्मीर से प्यार है जारी कर दिया। तकरीब में कश्मीर की मुनासबत से पिक्चर वॉल की नुमाइश की गई। दीवार शहदाए हुर्रियत कश्मीर पर बिल बोर्ड्स नस्ब किए गए। कश्मीरी रहनुमाओं और शहदा की तस्वीर को सलाखें लगाकर अलामती जेल बनाया गया। वजीर आला पंजाब ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, आबादी बढ़ने से सड़कें छोटी हो चुकी हैं, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जरूरी है। एहतजाज की पहले भी बहुत सी कॉल्स आईं, आवाम ने जलाओ घिराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। नाजरीन, आपको बताएं, लाहौर जिलानी पार्क में हॉर्स एंड कैटल शो की फ्लोट्स गाड़ियों का इफ्तिताह पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर पंजाब मलिक ज़िशान ने किया। तकरीब में चेयरमैन PHA गजाली सलीम बट, DG PHA मोहम्मद ताहिर वट्टू और PHA के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर पंजाब मलिक ज़िशान ने हॉर्स एंड कैटल शो के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हॉर्स एंड कैटल शो की बाकायदा इफ्तिताही तकरीब 9 फरवरी को फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनाकिद की जाएगी। हॉर्स एंड कैटल शो 2025 की तकरीबात पंजाब की सकाफत और तमद्दुन उजागर करेगी। हॉर्स एंड कैटल शो का 35 साल बाद इनेकाद किया जा रहा है और इस हॉर्स एंड कैटल शो में बैनुल क़ौमी टीमें भी शिरकत कर रही हैं। नाज़रीन, लाहौर से 3 करोड़ रुपए तवान के लिए अगवा होने वाले बच्चे को बाजियाब करवा लिया गया। अगवा कार करीबी रिश्तेदार निकले। बच्चा सही सलामत वापस मिलने पर मां की खुशी की इंतहा न रही। पुलिस का बच्चे को घर लेकर पहुंचने पर गुलपाशी की गई। तफसीलात बता रहे हैं नुमान शेख इस रिपोर्ट में। 3 करोड़ तवान के लिए 10 साला बच्चे का अगवा मगवी बाजियाब करवा लिया गया। करीबी रिश्तेदार ही अगवाकार निकले। 6 फरवरी की रात 10 साला जमान को मां की आंखों के सामने अगवा किया गया। वारदात गुजरपुरा में हुई। मुसल्ला मोटरसाइकिल सवारों ने रास्ता पूछने के बहाने बच्चा उठाया और वालिद से 3 करोड़ रुपए तवान मांग लिया। जैसे ही वो मुल्ज़मान जो है आइडेंटिफाई हुए, वो उनके पीछे फिर पुलिस जो है उन्होंने चेज़ करना शुरू कर दिया। पुलिस का इनकाउंटर हुआ, टायर बस्ट हुए, एक्सचेंज ऑफ फायरिंग हुई। उसके बाद मुल्ज़मान तीनों के तीनों जो है वो गिरफ़्तार कर लिए गए और जो है पैसे भी रिकवर कर लिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑल एक्यूज हैव बीन अरेस्टेड। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट और ऑपरेशंस पुलिस की मुश्तरका टीम तश्कील दी गई। हिकमत अमली के तहत अगवाकारों को 80 लाख रुपए तवान अदा करके बच्चा वापस लिया गया और पुलिस ने ताक़ुब शुरू कर दिया। इंचार्ज अगवा बराए तवान सेल मियां तौकीर अंजुम और SHO गुजरपुरा मोहम्मद ज़का की टीम का चूंग के करीब फायरिंग का तबादला हुआ और तीनों मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। SP साहब ने, सिविल लाइन वालों ने, फिर SHO साहब ने, DSP साहब ने, अंजुम तौकीर साहब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा घर आ गया। तो ये इनकी काविश है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका बड़ा शुक्रगुजार है पंजाब पुलिस का। SP सिविल लाइन्स अब्दुल हनान और DSP सुहेल काजमी मगवी बच्चे को घर लेकर पहुंचे तो इलाका मकीनों ने गुलपाशी की। नाज़रीन, लाहौर में मालिकान की जानिब से डांट का बदला लेने के लिए 9 मौलूद पर तशद्दुद करने वाली घरेलू मुलाजमा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 3 माह के बच्चे पर तशद्दुद और घर से चोरी करने वाली घरेलू मुलाजमा साइमा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 मौलूद बच्चे पर तशद्दुद करने की फुटेज मंजर आम पर आई थी।
CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि खातून बच्चे को झूले से उठाकर बेड पर पटक रही थी। घरेलू मुलाजमा बच्चे को बेड पर रखकर तशद्दुद करती रही और बादशाह घर में चोरी करके फरार हो गई थी। पुलिस ने मुद्दई की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज किया और बिला आखिर खातून को गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की जानिब। दोहरे कत्ल, पुलिस मुकाबले, दहशतगर्दी और पुलिस एहलकार से असलहा छीन कर फरार जैसे मुकदमात में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने 4 साल कबल अदालत पेशी पर जाने वाले 2 शहरियों को कत्ल किया था। मुलजिम को शेखुपुरा से गिरफ्तार किया गया। मजीद बता रहे हैं सैयद मुशर्रफ शाह इस रिपोर्ट में। DIG ऑपरेशन लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान की हदायत पर संगीन मुकदमात में मुलव्विस इश्तहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। SP इकबाल टाउन डिवीज़न बिलाल अहमद ने DSP आतिफ महराज खान की निगरानी में SHO मिल्लत पार्क आसिफ फरीद के हमरा जो पुलिस टीम तश्कील दी, इसने दोहरे कत्ल की संगीन वारदात का खतरनाक इश्तहारी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम नासिर डोगर सांधे के दोहरे कत्ल का मफरूर इश्तहारी था। मुलजिम ने 4 साल कबल सेशन कोर्ट पेशी से वापसी पर ज़काउल्लाह और राशिद का कत्ल किया था। ये मफरूर अगर ना पकड़ा जाता तो इससे और भी एक्सपेक्टेड थी कि और भी वारदातें इस तरह ही करता, चोरी की। SP इकबाल टाउन डिवीज़न बिलाल अहमद के मुताबिक मुलजिम नासिर डोगर पर दहशतगर्दी, पुलिस मुकाबला और हवालात से फरार होने का मुकदमा भी दर्ज था। मुलजिम नासिर डोगर साथियों समेत थाना सिटी समंदरी के संतरी से सरकारी गन भी छीनकर फरार था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुतअद्दिद बार टीमें बनी जो मुलजिम की गिरफ्तारी में नाकाम रही थीं। CCP साहब की डायरेक्शन पे और DIG ऑपरेशंस की डायरेक्शन पे हमने अपनी टीम को ये टास्क दिया। इसमें SHO साहब और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। SHO मिल्लत पार्क हैं आसिफ, इनकी पूरी एफर्ट थी। SHO मिल्लत पार्क आसिफ फरीद ने जदीद टेक्नोलॉजी, CDR और ह्यूमन इंटेलिजेंस को बरूए कार लाते हुए मुलजिम नासिर को मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड ऑपरेशन करते हुए शेखुपुरा से गिरफ्तार किया। DIG ऑपरेशन लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान ने इश्तहारी मुजरिमान की गिरफ्तारी के लिए जारी क्रैकडाउन को मजीद तेज करने के अहकाम जारी किए। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं, कज़ाफी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के बाद पहली बार पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इस तारीखी ग्राउंड में मैच खेला गया। 33,000 से ज़ायद तमाशाइयों ने इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम का रुख किया। न्यूजीलैंड के 331 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम फैंस की तवक्कात पर पूरा ना उतर सकी। शायकीन का कहना था कि बड़ी तवक्कात लेकर आए थे, लेकिन खिलाड़ियों ने बहुत मायूस किया। तफसीलात मोहम्मद यूसुफ अंजुम से। लाहौर में इंटरनेशनल क्रिकेट की रौनकें बहाल होने से फैंस को बड़ी तफरीह मिल गई। कज़ाफी स्टेडियम के बाहर लंबी कतारें लग गईं। क्रिकेट दीवाने पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच देखने के लिए बड़ी तादाद में स्टेडियम पहुंचे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हार से इनके दिल टूट गए। आज का मैच अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था। हार जीत है लेकिन ठीक है, अच्छा खेले। हमने सारी देर मैच देखने आए थे, पाकिस्तान मैच हार गया है, हमें दुख हुआ है। पाकिस्तानी टीम ने बड़ा मायूस किया, इन्हें अच्छा खेलना चाहिए था। मैं पापा के साथ आई थी मैच देखने, बहुत मज़ा आया, लेकिन पाकिस्तान हार गया। हार जीत तो होती है हर मैच में, लेकिन जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। क्रिकेट मंचनों को ये भी यकीन है कि पाकिस्तानी टीम ICC चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करेगी। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। यहाँ करते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद रज़िया आपको बताएंगी इस्लामाबाद का अहवाल। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए खबरदार किया है कि अगर IMF के जायजे ताख़ीर का शिकार होते हैं तो मुल्क की क्रेडिट रेटिंग में कमी आ सकती है। ताहम पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम की बहाली, अफरात ज़र में नुमायाँ कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी के हवाले से पेशरफ्त की है। जनवरी 2025 में पॉलिसी रेट 12% तक कम करने का फैसला और महंगाई की शरह 2% तक आना उन मस्बत पहलुओं में शामिल है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि पाकिस्तान को रवा माली साल में $22 अरब से ज़ायद बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी करनी है, जिसमें से $13 अरब दो तरफ़ा कर्ज़ों पर मुश्तमिल हैं। पाकिस्तान की मुआशी सरगर्मियाँ मुस्तहकम, शरह सूद में कमी से बेहतर हो रही हैं। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच ने पाकिस्तान के हवाले से अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। फिच की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की इक्तसादी इस्तेहकाम की बहाली, बैरूनी कर्जों की तामीर नौ के लिए पेशरफ्त जारी है।
गुज़श्ता साल IMF मुआहदे की बुनियाद पर डिफ़ॉल्ट रेटिंग CCC+ थी। CCC की दर्जाबंदी डिफ़ॉल्ट होने के ज़्यादा खतरे को जाहिर करती है। रिपोर्ट में बताया गया है पाकिस्तान के जारी ढांचा जाती इस्लाहात से मुआशी पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान की जारी इस्लाहात IMF रिव्यू का एक अहम हिस्सा होगा। मरकजी बैंक की मालियाती पॉलिसी की वजह से शरह सूद अफराते ज़र में कमी आई। पाकिस्तान में जनवरी 2025 में महंगाई कम तरीन सतह 2.4% सालाना पर पहुंची। फिच रिपोर्ट के मुताबिक तरसीलात ज़र में इजाफा ज़री बरामदात से करंट अकाउंट $1.2 अरब से सरप्लस रहा। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। मजमूई ज़र मुबादला $18.3 अरब पर पहुँच गए। शामिल करते हैं अगली खबर। अवामी जमहूरियत चीन के सदर शी जिनपिंग की दावत पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 4 से 8 फरवरी तक चीन का सरकारी दौरा किया। पाकिस्तान और चीन ने इंसदाद दहशत गर्दी, दिफा, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुतअद्दिद शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया और दो तरफ़ा ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिशें नाकाम बनाने के अज़्म का इजहार किया। चीन ने पाकिस्तान की कौमी सलामती, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मुकम्मल हिमायत का इआदा किया, जबकि दोनों ममालिक ने अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया और साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के पुरअमन हल पर जोर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक चीन मुश्तरका एलामिया जारी। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं। इसमें खलल डालने या कमज़ोर करने की कोई भी कोशिश नाकामी से दो चार होगी। पाकिस्तानी वफ्द ने वन चाइना उसूल पर अपने पुख्ता अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तानी वफ्द ने इस बात पर जोर दिया कि पाक चीन ताल्लुकात उसकी खारजा पॉलिसी का संग बुनियाद हैं। दोनों ममालिक की मुश्तरका खुशहाली और खित्ते की तरक्की के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किरदार अदा करेंगे। नए दौर में मुश्तरका मुस्तकबिल के साथ मजीद करीबी चीन पाकिस्तान कम्युनिटी की तामीर के लिए कोशिशों को तेज करेंगे। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तानी वफ्द के मुताबिक ताइवान अवामी जमहूरियत चीन की सरजमीन का एक नाकाबिले तनसीख हिस्सा और चीन के बुनियादी मफादात का मरकज है। पाकिस्तान ताइवान की आज़ादी की तमाम शक्लों की सख्ती से मुखालफत करता है। पाकिस्तान सिंकियांग, जीजांग, हांगकांग और बहिरा जनूबी चीन से मुताल्लिक मामलात पर भी चीन की भरपूर हिमायत करेगा। पाकिस्तानी वफ्द ने पाकिस्तान में चीनी एहलकारों पर होने वाले दहशतगर्दाना हमलों की शदीद मजम्मत की और कहा पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मंसूबों और इदारों की हिफाजत को यकीनी बनाना मेज़बान मुल्क के तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। इससे पहले सदर आसिफ जरदारी की चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, जिसमें पाक चीन दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया गया। सदर ने तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। सदर आसिफ जरदारी ने चीनी हम मनसब से भी मुलाकात की। वफाकी दारुल हुकूमत के असातिज़ा ने टैक्स रिबेट पॉलिसी के खात्मे और एजुकेशन अलाउंस की मंजूरी के हवाले से जॉइंट एजुकेशन एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसकी वजह से स्कूल रोड पर सुपर मार्केट की तरफ जाने और आने वाली ट्रैफिक मुअत्तल रही। मुजाहिरे की क़यादत कमेटी के कन्वीनर फजले मौला कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि एहतजाज के पहले मरहले में अगर मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का अगला लाहे अमल दिया जाएगा, जिसमें क्लासेस और इम्तिहानात के बाइकआउट के साथ तालीमी इदारों की तालाबंदी भी शामिल होगी। मजीद तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। वफाकी तालीमी इदारों के असातिज़ा ने प्रेस क्लब के सामने भरपूर एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे में बड़ी तादाद में असातिज़ा शरीक हुए और अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। असातिज़ा ने हुकूमत के सामने अपने मुतालबात पेश किए। इनका कहना था तनख्वाहों में टैक्स कटौती की छूट बहाल की जाए, तालीमी अलाउंस भी दिया जाए। टैक्स रिबेट हमारे 25% से टैक्स रिबेट खत्म किया गया, उसको फौरी तौर पे बहाल किया जाए। और दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि तमाम एफडी के अंदर तमाम जितने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको 100% एजुकेशन अलाउंस दिया जाए। तमाम उस्ताज़ा की पूरे मुल्क के जो उस्ताज़ा हैं उनकी किसी की 25,000, किसी की 50,000, किसी की 60,000 और किसी की 10,000 अकॉर्डिंग टू देयर पे। हमारी तो जून में इतनी सैलरीज बढ़ी नहीं है जो कि जनवरी में बगैर इंटीमेशन के काट दी गई। एहतजाज करने वाले असातिज़ा ने कहा हुकूमत हमारे मुतालबात मंजूर करे और खबरदार किया अगर एक हफ्ते में कोई पेशरफ्त ना हुई तो तदरीसी अमल मुअत्तल कर दिया जाएगा और इम्तहानात का बाइकआउट भी किया जाएगा। आज हम रोड्स पर हैं। रोड टीचर्स की जगह नहीं है, इनको क्लासरूम्स में होना चाहिए, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए। वैल्यूएबल टीचिंग और लर्निंग टाइम आज ज़ाया हुआ है। हम यहाँ अपना प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड कराने आए हैं और अगर हमारा ये मुतालबा नहीं माना जाता
टैक्स फ्री सैलरी नहीं दी जाती तो ये कंटिन्यू रहेगा टिल द टाइम कि मुतालबा माना जाए, क्योंकि ये हमारा बेसिक राइट है। कौमी असेंबली के और सेनेट की जो लोग हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं और हमारे जो टैक्स है ना वो इस तरह ये लोग काट रहे हैं। तो हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि टीचर्स वैसे भी इनकी खिदमत करते हैं, वैसे भी बहुत से कामों में इनके साथ होते हैं, तो पता नहीं इन्होंने हमारे टैक्सेस के ऊपर इस तरह का क्यों इन्होंने दायराबंद बनाया है। असातिज़ा का कहना है अगर हुकूमत ने इनके मुतालबात ना माने तो वो सख्त इक़दामात पर मजबूर होंगे, जिससे तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो सकती हैं। हुकूमत को अगले हफ्ते का वक्त देते हैं। अगर मुतालबात ना माने गए तो इस्लामाबाद के तमाम सरकारी स्कूल बंद करके एहतजाज किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में मुकीम गैर कानूनी अफगान शहरियों समेत दीगर गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करने का फैसला कर लिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताहाल 780 से ज़ायद अफगान शहरियों को तोरखम बॉर्डर के ज़रिए डिपोर्ट किया जा चुका है। ताहम वो अफगान जिनको यूरोपीय ममालिक स्पॉन्सर कर रहे हैं उन्हें नहीं निकाला जाएगा और यूरोपीय ममालिक को पाकिस्तान में मुकीम अफगानियों का वीज़ा प्रोसेस तेज़ करने का भी कह दिया गया है। शामिल करते हैं अगली खबर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेशी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन की मुलाकात हुई, जिसमें इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक एडमिरल मोहम्मद नजमुल हसन ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के कलीदी किरदार का भी एतराफ़ किया। इस्लामाबाद के इलाके अपारा मरकज़ में बैंक के गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। बैंक के बाहर 4 डाकू दिन 1 बजे SMG गन्स लेकर आए और बैंक के बाहर फायरिंग शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स 6 लाख रुपए बैंक में जमा करवाने आया था, जिसका डकैत गिरोह ने पीछा किया और बैंक के करीब पहुंचते ही फायरिंग शुरू कर दी। बैंक के बाहर अमजद हुसैन गाजी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद था, जिसने अपनी जान हथेली पर रखते हुए रकम जमा करवाने वाले शख्स की जान बचाई और कैश जाने ना दी। 5 फरवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। कश्मीर डे पर मुल्क भर में मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी और मजहबी तंजीमों की जानिब से कश्मीरी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए जलसे, जुलूस और रैलियां निकाल कर भारतीय मजालिम की मजम्मत की गई। तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया और इंसानी हाथों की जंजीरें भी बनाई गईं। यौम यकजहती कश्मीर की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में हर साल 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। पाकिस्तान को कश्मीर से मिलाने वाले रास्तों पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाने के साथ साथ जलसे, जुलूस और रैलियां निकाली जाती हैं। सदर आज़ाद कश्मीर का कहना है अपने कश्मीरी भाइयों की इखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। दइयों से हम मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। उनकी कुर्बानी की दास्तानें रकम हैं और वहाँ पर भारत रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, लेकिन अब भारत पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। 1975 में शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के दरमियान मुआहदे के वक्त उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 28 फरवरी को कश्मीरियों से यकजहती का दिन मनाने का ऐलान किया। 1990 में काजी हुसैन अहमद ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए दिन मखसूस करने का मुतालबा किया। उस वक्त की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने 5 फरवरी 1990 को यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाने का ऐलान किया। इस दिन को सरकारी तौर पर मनाने का आगाज 2004 में उस वक्त के वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह जमाली और वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ ने किया। चीफ मिनिस्टर से भी तवक्को करता हो वो सिंध के KP के या बलूचिस्तान के, ये कश्मीर का इशू हमारा कोई सियासत वाला इशू नहीं है, ये वही इशू है कि हर एक पाकिस्तानी का इशू है, हर एक पार्टी का इशू है। तो उनको सियासत एक साइड पर रखकर और वही कश्मीर के लिए और पाकिस्तान के लिए उनको भी निकलना चाहिए कि एक मैसेज जाए। इसकी अहमियत इस लिहाज से कि बैरूनी दुनिया में एक मैसेज जाए कि इसी 1 पॉइंट पर तो हम सारे पाकिस्तान। ऐसा कज़िया है जहाँ 76 साल में 6 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं और आज तक इस मसले का पुरअमन और पायदार हल सामने नहीं आया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी ज़ामन है। ताहम आज मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों को भी पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान आपका पुश्तिबान है, पाकिस्तान किसी सूरत आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। आज आलमी बरादरी को और उसके साथ साथ भारत को भी बावर कराया जाएगा कि कज़िया कश्मीर के हल के लिए वो अपना पॉजिटिव अप्रोच अपनाए और जब तक न मसले कश्मीर कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक, कश्मीरी अवाम के उमूम के मुताबिक हल हो जाता है,
पाकिस्तान इसी तरह से हमारे साथ यकजहती करता रहेगा, सियासी, सफारती और इखलाकी हमायत जारी रखेगा। कश्मीरी तारीखदानों के मुताबिक महाराजा हरि सिंह के खिलाफ तहरीक के दौरान 21 कश्मीरियों की शहादत पर अल्लामा इकबाल ने 14 अगस्त 1931 को कश्मीरियों से यकजहती का दिन मनाने की कॉल दी थी। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।